Continuing with chapter 2, our topic is very important, Van de Graaff generator. Van de Graaff generator. So what is this Van de Graaff generator? It is a high voltage generator. It can generate potential difference of the order of 10 raised power 7 volts, or few million volts. Okay, let us say 10 million volts. Okay, now this Van de Graaff generator, this device to generate very high voltages, is based on two important principles. One, first of all, principles. What are those principles? Okay, number one, discharging action of sharp points called corona discharge. That is electric discharge takes place in air or gases readily at pointed ends of conductor. Discharging action of the sharp points called corona discharge, that is electric discharge, takes place in air or gases readily at the pointed ends of conductor. यानी अगर हमारे पास pointed conductor के pointed edges हो, वहाँ पर जल्दी discharge होता है, तो चार्ज वहाँ से डिस्चार्ज होता है. वो एक्शन इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा. सेकंड जो प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस सेकंड प्रिंसिपल है इसका, इफ अ चार्ज कंडक्टर is brought into internal contact
internal contact with hollow conductor, all of its charge all of its charge gets transferred to the hollow conductor. Howsoever high the potential of hollow conductor may be. सेकेंड जो प्रिंसिपल है ये क्या कहते हैं, इफ अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इनटू इंटरनल कांटेक्ट, अगर चार्ज कंडक्टर को इंटरनली कांटेक्ट किया जाए विद हॉलो कंडक्टर के साथ, यानी खोखले कंडक्टर के साथ किया जाए, ऑल ऑफ इट्स चार्ज गेट्स ट्रांसफर टू द हॉलो साइड, यानी अंदर वाला जो कंडक्टर है उसका सारा चार्ज बाहर वाले कंडक्टर पे जाएगा, भले ही अंदर वाले की पोटेंशियल कितनी ही charge gets transferred to the hollow conductor, however high potential of the hollow conductor may be, यानी बाहर वाले कंडक्टर कितना भी पोटेंशियल हो, हाई हो लो हो, तो वो अंदर वाले से ही बाहर वाले चार्ज में जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो प्रिंसिपल है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि बाहर वाला जो हॉलो कंडक्टर है उसमें सारा चला जाएगा बनिस्बत, अगर इनर वाला आउटर वाला बाहर वाला कंडक्टर हाई पोटेंशियल पे भी हो कितना ही, लेकिन चार्ज उसके अंदर से ही आएगा। ठीक, ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है, ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, ये कोरोना डिस्चार्ज ये हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, कोरोना डिस्चार्ज। Let us suppose that we have a conductor in this shape. Here it is pointed and here it is not pointed. Let us suppose that this is given a positive charge. Whole of this conductor is given a positive charge. Now this here we have a pointed end as compared to this. Now this is kept on a, let us say, hollow, this on a non-conducting stand. Now when a spherical conductor of radius r carries charge q, ठीक, its surface charge density, surface charge density is sigma, that is charge divided by area, surface charge density. Now since we have a, let us say, spherical conductor, so Q, its area will be 4 pi r square. Now we also know that electric field due to a conductor is given by sigma by epsilon. Now
If we substitute for sigma in this equation, what we will get? We will get q by 4 pi epsilon 0 r square. Now q, अगर हमने इस पे चार्ज q दिया इस कंडक्टर पे, तो इस पे q कांस्टेंट होगा. 4 pi epsilon 0 is also constant, so it implies that E is inversely proportional to square of the radius of the sphere. जहां पर ये sphere है. अब देखिए यहाँ पर जो एरिया है, अगर मैं यहाँ पर ये कंडक्टर ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ स्फीयर बना दूँ, उसकी रेडियस मिसाल के तौर पर r1 है. अगर यहाँ मैं ले लूँ, उसकी रेडियस r2 है. नाउ r2 r1 is less than r2. ठीक. It means electric field at here, let us say E1, electric field in this portion at pointed edge E1 will be 1 by 4 pi epsilon 0 r1 square, and field at this, let us say this is r due to this, ठीक, will be E2 1 by 4 pi epsilon 0 r2 square. ठीक. Now if we divide E1 by E2, then what we'll get? We will get r2 square by r1 square. So since r1 is smaller than r2, it means electric field will be higher at r1 at this pointed edge, and rather than at this point. So electric field E1 will be much greater than E2, because R here is very small. At pointed edge R tends to 0. एट पॉइंटेड एज, यहाँ पर पॉइंट एज इसके जो अगर यहाँ पर स्फीयर लेंगे वो बहुत ही छोटा होगा, लगभग 0 की टेंड करेगी उसकी रेडियस. दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगा, इट विल बी वेरी हाई, वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ दिस कंडक्टर. ओके. नाउ व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस, आई विल राइट हियर. दिस हाई फील्ड, जो भी मैंने कहा E1, दिस हाई फील्ड causes ionization or electrical breakdown. इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन यहाँ पर मैं समझाता हूँ. वी नो दैट E इज इक्वल, हेयर मैं लिखूँगा E इज इक्वल टू V बाई डी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई होगा तो पोटेंशियल उस जगह वेरी हाई होगी. तो जब पोटेंशियल वेरी हाई होगी, जो इंसुलेशन जब एक ब्रेकडाउन होता है, तो जब एयर है वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रेच हो जाते हैं फील्ड की वजह से, तो वो वहाँ इलेक्ट्रॉन उन एटम में से स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं, तो वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है. ठीक. मिसाल के तौर पर ये एटम है, इसकी अपनी एक फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाहर अगर लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा. अगर फील्ड जो मैंने यहाँ पर दिखाया वेरी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना खींचेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, ये इसको बाहर ही निकला स्ट्रिप ऑफ करेगा. तो ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये कंडक्टर में ये एक आयन्स बनेंगे. ये अब नेगेटिव आयन बनेगी, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव बनेगा. ठीक. तो ये आयन बनेगा, तो यानी इंसुलेशन ये ख़त्म कर देता है, इंसुलेटर को ये कंडक्टर बनाता है. दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन. ठीक है. सो मैं कह रहा था, दिस हाई फील्ड कॉजेज आयनाइजेशन और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन. ठीक. ऑफ सराउंडिंग एयर. ठीक है. जो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द एयर हो, चूंकि उधर वेरी हाई फील्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स वो स्ट्रिप ऑफ ही करता है, निकाल देता है वहाँ से, तो वो कंडक्टर बनता है, उनको आयन्स बनाता है. ठीक. द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन neutralize
neutralize the pointed end, while the similar charged ions get repelled away and fresh air molecules come near pointed end and take away its charge. ठीक है. Setting up a kind of electrical wind. Okay, this is called corona discharge. The discharge is often accompanied by visible glow near pointed end. फॉर एग्जाम्पल स्पार्क प्लग में जैसे स्पार्क होता है, जो बाइक वगैरह में लगा होता है स्पार्क प्लग. देखिए यहाँ मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. अभी मैंने दिखाया था आपको, ये कंडक्टर है, ठीक. यहाँ ये पॉइंटेड एज है और यहाँ पर पॉइंटेड नहीं है. नाउ एट पॉइंटेड एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ. देखिए कंडक्टर है, ये समझो एक पॉइंटेड एज है, ठीक. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लार्ज बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक. क्योंकि यहाँ जो पॉइंटेड एज है उसकी जो स्फीयर बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा. दैट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत छोटा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई. नाउ इसके इर्द गिर्द जो एयर, सराउंडिंग एयर होगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है. लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, उस इंसुलेशन की वो इंसुलेशन ही ख़त्म कर देता है. क्योंकि मिसाल एयर, कोई एटम है एयर का, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है. अब चूंकि फील्ड बहुत ज़्यादा है, मिसाल मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर, ठीक. इतना बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो ये खाली आयन रहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, तो आयन का चार्ज पॉजिटिव होगा. तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो गया, यानी इंसुलेशन जो इसके इर्द गिर्द एयर है वो इंसुलेशन ख़त्म हो गई. अब जो पॉजिटिव आयन है, ठीक, वो चूँकि इसके चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल हो जाएगा. तो जो यहाँ पॉजिटिव आयन इस जगह बनेंगे वो रिपेल हो जाएंगे, ठीक. और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, वो इस चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे. तो ये जो सिमिलर चार्ज यहाँ पर प्लस था, सिमिलर चार्ज क्या हो गया, रिपेल्स.
तो ये बनाता है एक किस्म का एयर। फिर फ्रेश एयर आता है, उसमें फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होती है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा रिपेल होके और नेगेटिव यहाँ इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा जब तक इस पर चार्ज है। तो इसी तरह से ये एयर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल विंड बनता है एक किस्म का, ठीक है। तो लाइक चार्ज जो होंगे वो रिपेल होंगे, अनलाइक जो होंगे इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें न्यूट्रलाइज करता रहेगा जब तक यहाँ पर चार्ज है। सो ये हो गया एक्सप्लेन कोरोना डिस्चार्ज। Conducting action of hollow sphere. Let us suppose that we have a sphere, inner sphere, having radius r and charge q. Now, another sphere, a larger sphere, which encloses this small sphere, whose radius is capital R and charge on this is q. Now, potential due to the hollow sphere at a point R on this sphere will be 1 by 4 pi epsilon 0 q by R. But due to this charge, potential will also be due to this charge, which will get added, that will be 1 by 4 pi epsilon 0 q at a distance r. q यहाँ charge है, तो at a distance r it will be q by r. Now this will be, we are taking common 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R plus small q by r. Now potential and the sphere, inner sphere, let us say potential VR, that will be first due to its charge, that will be 1 by 4 pi epsilon 0 q by smaller, and due to the outer charge, outer sphere, it will be 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, or VR will be equal to, taking 1 by 4 pi epsilon 0 common, that will be q by r plus capital Q by r. Let us say this is equation 1, this is equation 2. Now potential difference between inner and outer sphere, that will be VR minus V capital R. So if we subtract 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, 1 by 4 pi epsilon 0, so this will cancel out. So बचेगा हमारे पास, after simplifying it will be 1 by 4 pi epsilon 0, it will be q by r, और q कॉमन निकालेंगे, it will be 1 by r minus 1 by capital R, small r minus capital R. Okay, now 1 by, as 1 by r is greater than 1 by capital R, क्योंकि r small है, 1 by r will be greater than capital 1 by r. That means the quantity 1 by r minus 1 by capital R will be always positive, whatever the charge on this conductor may be. So the quantity, now अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर फिर से डेल्टा V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमें निकला Q 1 by R minus 1 by capital R. Now the quantity 1 by R minus 1, this is positive. So this whole thing is positive. That means the potential difference is always greater than 0. Now potential difference क्या हमने निकाला between inner and outer space. उसका मतलब है ये हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा इसकी potential. So potential of hollow sphere will be less than the potential of the inner sphere, because this will be always positive whatever, क्योंकि इसका चार्ज इसमें इंक्लूड होता ही नहीं है. It depends upon the charge of this. Okay, as 1 by R is always greater than the 1 by capital, 1 by small r is always greater than 1 by capital R. So this inner sphere will be always at higher potential. That means charge will always flow from this to this, because charge flows from higher to lower potential. अब इस पे जितना भी देखिए, charge will always, now as we have found this factor is positive, that means VR is greater than V, that is यहाँ पर VR जो होगा potential will be always greater than VR. इसका potential हमेशा ज़्यादा होगा बनिस्बत कि इसके. It means इस पे कितना ही चार्ज हो
तो हम हमेशा, चूंकि ये वी आर, इस पे जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन वी आर कैपिटल, तो चार्ज फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, देयरफॉर चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर conductor to the outer hollow spherical conductor. Okay, this is the second principle. Now next is constructional working. Okay, construction and working of Van de Graaff generator. Now, point number one, it consists of a large conducting spherical shell S. तो हमारे पास पहला जो होता है एक large conducting spherical shell like this. Okay, few meters in radius. तो ये spherical shell S है जिसकी few meters radius होती है on an insulating stand. तो ये किस पे होता है, एक insulating stand पे ऐसे. ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये होता है इंसुलेटिंग स्टैंड. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 2, a belt made of insulating mid fabric runs over the two pulleys of P1 and P2 and belt acts as the belt और रन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, दो पुलीज होती हैं, एक यहाँ पर, ठीक, दो पुलीज होती है P1 एंड P2, इनके ऊपर एक बेल्ट होता है जो उस पे कन्वेयर बेल्ट हो जैसे होता है, जो इस पे इन पे चलता है. ठीक, ये बेल्ट इन पे चलता है. ठीक, इनको दीज आर रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स. ये जो बेल्ट इस पे होता है जो आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इट इज रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स. Point number 3, spray combs made of metallic conductors spray comb is made of metallic needles connected to the high voltage rectifying source HUR, which is earthed. A collecting comb C2 facing the belt is connected to the spherical shell. देखिए यहाँ पर एक कॉम्ब होता है जो नीडल मटेरियल, जिसमें नीडल्स होते हैं. ठीक, नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्ब होता है C1. ठीक, ये कनेक्टेड होता है वेरी हाई वोल्टेज HUR, हाई, ठीक है ना, वोल्टेज, ये कनेक्टेड होता है, वो फिर अर्थ होती है यहां से. ठीक है, अब ये जो पॉइंटेड कॉम के पॉइंटेड एज होते हैं, ये वही काम करता है जो कोरोना डिस्चार्ज. जब इस पे हम वेरी हाई चार्ज देते हैं पॉजिटिव, ठीक, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो यहाँ कोरोना डिस्चार्ज होता है.
कोरोना डिस्चार्ज क्या करेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बेल्ट पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेल्ट मूव करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आता है इस पे। यहाँ पर कोरोना देखिए, अगर यहाँ पर कोई पॉइंटेड एज है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन उस के पास जो एयर होगा, तो ये अपना चार्ज पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये जो यहाँ कॉम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज। अब यहाँ पर जो दूसरा कॉम है C2, कलेक्टिंग कॉम, स्प्रेइंग कॉम एंड कलेक्टिंग कॉम, ये कनेक्टेड होता है इस एक्सटर्नल स्फीयर से, ठीक। अब जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन इसके जो ये बाहर वाले एज ये नेगेटिव बन जाते हैं, कॉम के जो ये बाहर वाले एजेस होते हैं ये नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो अब जब इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव होते हैं, क्योंकि कनेक्टेड होता है इसके साथ ये नेगेटिव बनता है, तो बाहर वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज बनती है, तो ये सारा चार्ज पॉजिटिव इस स्फीयर पे आ जाएगा, बाहर वाले स्फीयर पे, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मटेरियल होता है जिसको हमें एग्जामिन करना है, जिसका स्ट्रक्चर हमें एग्जामिन, वो एक थिन ट्यूब में होता है, यहाँ पर यहाँ टारगेट, इसको टारगेट कहते हैं, तो ये सोर्स होता है। जैसे ही अब चार्ज चलता जाता है, चार्ज चलता जाता है ऊपर, यहाँ हम चार्ज देते रहते हैं तो ऊपर चला जाता है, वो इस पे स्फीयर पे सारा चार्ज होता है, तो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट होती है, उसकी वजह से यहाँ पर सोर्स जैसे पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर होते हैं, तो वो चूंकि यहाँ पर वेरी हाई चार्ज हो तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, जब चार्ज हो तो F इज इक्वल टू QE, फोर्स, जो ये इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर सोर्स होते हैं तो उन पे फोर्स लगता है, दे गेट एक्सीलरेटेड बिकॉज F इज इक्वल टू QE, दे गेट एक्सीलरेटेड एंड मूव डाउनवर्ड्स एंड हिट द टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल इज दैट मटेरियल विच वी हैव टू एग्जामिन, जिसका स्ट्रक्चर वगैरह हमें एग्जामिन करना है, ठीक। तो इस सारे को चूंकि वेरी हाई वोल्टेज है, इसको हम इवैक्यूएटेड चैम्बर में ऐसे बंद करते हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर में इसको बंद करते हैं, ताकि आयोनाइजेशन जो इसमें एयर है वो आयोनाइज, वो बाहर निकालते हैं, उसमें मीथेन गैस होता है, वो यहाँ इसमें रखते हैं वो, तो वो आयोनाइज नहीं होता है, ताकि ये डिस्चार्ज ना हो, जब ये चार्ज, ये बहुत सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे, वो डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। तो ये था इसका, ये इसमें लिमिटेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इट कैन नॉट एक्सलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स, ओके, दे आर नाउ ऑब्सोलीट, अब ये ऑब्सोलीट है, तो आजकल ये इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, इससे अच्छे वर्जन इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यूज कहाँ होता है, इट इज यूज टू एक्सीलरेट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अप टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और अल्फा पार्टिकल्स to probe the structure of the material, okay. It is also used to treat cancer and other medical purposes. Now quick इसका फिर से बताऊंगा, अब मैं क्विक इसको रिवाइज करूंगा, this construction of working of Van de Graaff generator. A Van de Graaff generator consists of a hollow metallic conductor, ठीक, S, which is put on this stand, a non-conducting insulating stand, so that it does not lose the charge. The inner we have two pulleys, okay, P1 and P2, upon which we have a conveyor belt of a non-conducting medium. There are two combs, C1 spraying comb and C2 the collecting comb. The C comb 2 is connected to very high rectifier voltage, ठीक है ना, वेरी हाई वोल्टेज, बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज ये जो कॉम C1 है उस पर बहुत सारा चार्ज आता है, तो जब चार्ज आता है तो वहाँ जो एयर होता है
हाई चार्ज की वजह से इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। उसकी वजह से जो इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो सिमिलर चार्ज को रिपेल करता है, वो इस बेल्ट पे आता है। क्योंकि बेल्ट अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचता है। यहाँ जब पॉजिटिव पहुंचता है, जो पहुंचता है, तो कलेक्टिंग कॉम C2 जो है उस पर ये इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज। वो कलेक्टिंग कॉम इस बाहर वाले इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है तो इनर सरफेस पे नेगेटिव जाता है, तो बाहर वाली सरफेस पे बाय इंडक्शन पॉजिटिव जाता है। तो ये बिल्डअप हो जाता है। भले इसका पोटेंशियल कितना ही हो, ऑलवेज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर टू द आउटर कंडक्टर, जो भी हमने प्रिंसिपल में देखा। जब यहाँ पर वेरी हाई वोल्टेज जनरेट होगी तो हाई फील्ड होगा। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज, जिनको हमें प्रोब करना, तो किसी मटेरियल के स्ट्रक्चर को देखना होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर रखे गए हों, तो उन पे फील्ड, हाई फील्ड की वजह से वो फोर्स उन पे आता है। तो फोर्स की वजह से उन पे एक्सीलरेशन होती है। जब एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होती है, वो सीधे टारगेट के अंदर चली जाती है और उसको हम प्रोब करते हैं, स्टडी करते हैं। इस सारे मटेरियल को, इस सारे वैन डी ग्राफ जनरेटर को हम इवैक्यूएटेड ट्यूब में रखते हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखते हैं, ताकि आयोनाइजेशन एयर में ना हो। वहां पर हम मीथेन और या कोई नाइट्रोजन गैस उसमें रखते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। इससे पहले मैंने